Hello everyone, welcome to MBA Karo. CAT 2022 is just 2 days away, and it is the time that you should be focusing only on revision. So, in this video, I'm going to tell you about what you need to be doing in the last 2 days. Some of you must be appearing for the examination by now and must have taken the test. So, what are the things that one must follow in the last 2 days in order to maximize your performance in the examination? See, you cannot change much in these last 2 days. If you have prepared sincerely for a significant duration of time, you are bound to do good. It's just that certain hacks that can help you perform better than actually that you would have performed otherwise. So if you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel for valuable content on MBA preparation. And I'll be taking the exam analysis of CAT on the day of the examination. So please do subscribe to my channel and stay updated with it. See, CAT is an aptitude based examination. We agree that. Now it is the time that aptitude will take a back seat, and it is the attitude that will take you to a better performance in the examination. The aptitude part is done. If you have worked rigorously for the last 3, 6, 9, 12, whatever be the duration that you have prepared sincerely, that is going to help you. But it is about the attitude that will help you maximize your score in the last on the day of the examination. So as you can see this graph, I found this graph interesting. So there are a lot of people who might be good with aptitude, okay, but they do not have the right mindset at this point in time, and as a result, they might, and many of you must have witnessed this in the past as well. You had belief in yourself, you thought that you could do well, but ultimately you could not do well in the examination. That was because of the attitude. Okay, so if you do not have a good attitude, maybe you are very strong with aptitude, you will end up being a frustrated performer. But ये नहीं बनना है, ठीक है? You have to score well in the examination. So you need to enter the exam hall with a positive mindset. Now there are some people who just साल भर सिर्फ मोटिवेटेड वीडियो देखते आए हैं, ठीक है? लाइक दे वॉच्ड दोज स्टफ वेयर दे वाज शोन कि अच्छा इतना करने से इतनी परसेंटाइल आ जाती है, 10 10 10 करने से इतनी परसेंटाइल आएगी, 8 8 8 करने से इतनी परसेंटाइल आएगी, बट दे डिड नॉट वर्क ऑन देयर एक्चुअल स्किल्स. So these are the people that have mind over matter. They just keep procrastinating. ठीक है, हम इतना कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, but they did not work hard. So I'm sure that you are not in this category. Okay, so even if your aptitude is average, right, but you have the positive mindset, you can do well. Okay, and if your aptitude is of the highest level, and your attitude is also good, you can be the peak performer in the examination. So target being this. Even if you are an average person, right, done average, ठीक है, बहुत high score नहीं आता है, बट एटीट्यूड अच्छा रखोगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे, पैनिक नहीं करोगे एग्जाम में, you can still perform very well in the examination. So now that aptitude part is in the hindsight, it is the right mindset that you need to have for the next 2 days. Certain things that you need to do in these 2 days is that revise the concepts. Okay, relax, जस्ट टेक रेस्ट यार, मतलब बहुत ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है. एंगेज इन सम एंटरटेनिंग एक्टिविटी, कोई मूवी देखनी है, दृश्यम 2 देखनी है, वो जाके देख लो, या कोई वेब सीरीज देखनी है, कुछ करनी है, तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है लास्ट 2 दिनों में, ठीक है? क्योंकि इससे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आने वाला है. यू विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग न्यू. इवन इफ यू डू, it will be always in a state of confusion. Eat and sleep well. Okay, do not eat junk food, do not eat heavy food that causes you like that makes you feel sleepy, especially on the day of the examination. Okay, and take proper rest. Take at least, like in the next 2 days, at least 7 8 hours per day you must sleep. Okay, spend time with family and good friends, discuss with them, think about the positive things that have happened. Okay, you studied for so many hours, all those, think about all the positives, do not think about the negatives. Okay, ensure that you keep those admit card, photograph, everything ready before the examination day. एग्जाम के दिन हो सकता है शॉप बंद रह गई, खाली पैनिक करोगे, ठीक है? सो पहले से आज या कल में प्रिंट आउट निकाल लेना, फोटो चिपका के सब कुछ रेडी करके, रीड द इंस्ट्रक्शंस, व्हाट ऑल नीड्स टू बी कैरीड. I will be conducting a session tomorrow and telling that what all needs to be done on the day of the examination. So keep those things ready today or tomorrow itself.
ठीक है। एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, डू नॉट लर्न एनी न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मान लो आपने किसी का वीडियो देखा, मेरा ही वीडियो देखा, और आपको कुछ नए चीज पता चल रही है, सो डू नॉट ट्राई टू लर्न इट, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, पैनिक हो सकते हो। डू नॉट टेक एनी मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट देने थे दे दिए। टू बी ऑनेस्ट, it is not about the number of mock tests that you give, right? I know people, I myself have done it. Even if you give very few or no mock tests, you can do very well in the examination, ठीक है। बट वो इसलिए पहले बताना पड़ता है कि लोग प्रैक्टिस में लगे रहे। अगर आपने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया ना, बिलीव मी, इफ योर एप्टीट्यूड इज गुड, योर एटीट्यूड इज गुड, यू कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दैट यू हैव गिवन। लोग 50 मॉक टेस्ट देके भी वो स्कोर नहीं ला सकते, कोई पर्सन 5 मॉक टेस्ट में भी उससे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दैट्स अ प्रूवन थिंग, I myself have done it. I've seen many aspirants do it. Okay, so do not worry about that कि अब कोई mock test दे देते हैं, sectional दे देते हैं, no, nothing like that. Do not solve difficult questions, ठीक है। आप स्टार्ट बनने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे, you will start having self doubt, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन से क्या होता है, सेल्फ डाउट होता है कि मुझे तो ये आता है कि नहीं आता है, राइट। सो अवॉइड दैट। लंबे क्वेश्चन दिख रहे हैं, छोड़ दो। जो लेंदी लेंदी क्वेश्चंस कोई आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ रहा है, अभी तक आप रिस्पॉन्स करते थे, फाइन, अब उन्हें मत करो, ठीक है। दैट विल जस्ट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, नॉट अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर लास्ट मिनट। ओके, डू नॉट स्टार्ट प्रेडिक्टिंग द एग्जामिनेशन, राइट। तो लाइक जैसे ये प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं कि अरे कितने परसेंटाइल, कितने स्कोर पे कितने परसेंटाइल, वो सब डेटा जो है दैट इज बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है, राइट। इट विल डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। सो डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग कि पेपर कैसा आएगा, डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा। जस्ट अवॉइड दोज थिंग्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। Now let us talk about section wise things that one must be doing in these last few days. Okay, so अगर हम बात करें VRC की, let us start with the first section. VRC में कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं, what people generally do is they read the passages and try to attempt the questions, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, हम क्या करते हैं, हम कंफर्ट जोन में जाते हैं, दैट इज गुड, बट वी फॉरगेट दैट इट इज अबाउट द क्वेश्चंस, नॉट ओनली जस्ट अबाउट द पैसेज। maybe there are some passages which might not be of your taste, ठीक है। देखो हर कोई हर तरह की चीजें नहीं पढ़ता, इट्स रेयर दैट पीपल रीड all different kind of genre, but generally we have certain likings. Like for example, I might like reading a science based passage, or I might like reading a finance based passage or business based passage, something, but I might not be liking some philosophy or some arts and culture. On the flip side, there might be some students who might like arts, history, etc., but not like science. Okay, so irrespective योर लाइक एंड डिसलाइक, ठीक है, हर तरह के पैसेज आते हैं, अलग अलग तरह के आएंगे। एक जैसे ऐसा तो नहीं कि चारों फिलोसफी पे आ गए, चारों आर्ट्स कल्चर पे आ गए। तो वन थिंग दैट यू नीड टू चेक द पैसेज, दैट इज फाइन, बट क्वेश्चंस भी देख लो, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि जिस टॉपिक से पैसेज आया है वो टॉपिक आपके लिए फेमिलियर है, ठीक है, आप मान लो साइंस आए, बट इसके क्वेश्चंस काफी ट्रिकी हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई seeing the questions is also important. So in the examination you have a button here called question paper button. यहाँ पे एक चार बटन होंगे, एक instructions and all, एक question paper button होगा। उसको क्लिक करने से सारी स्क्रीन यहाँ पे आ जाती है, then you can read the passages and the questions as well. So make sure that you go through them so that you understand कि अच्छा ये पैसेज आया है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द पैसेज कंप्लीटली, ठीक है, होता है कि आपने कोई चीज नहीं पढ़ी है या आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है, यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज वर्ड बाय वर्ड और कंप्लीटली, ठीक है। बट व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। अगर स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा ना, सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस पैसेज इज रिटन। सो फॉर एग्जांपल, लाइक इट कैन बी अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज डिस्क्राइबिंग सर्टेन थिंग्स। इस केस में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लोग एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है, या फिर कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो सकता है कोई पैसेज, कोई किसी चीज की हिस्ट्री बताइए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है। इट कुड बी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। नाउ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कैन बी इन एनीथिंग, देयर कैन बी टू साइंटिफिक थ्योरीज, there can be two different cultures that have been compared, it could be some philosophical theories, anything. So understand what does the author want to
कन्वे थ्रू द पैसेज, क्या वो कंपेयर कर रहा है दो चीजों को, क्या क्या वो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा है. सो इन दैट काइंड ऑफ पैसेज फर्स्ट पैराग्राफ विल बी ऑफ सम प्रॉब्लम, देन सॉल्यूशंस लाइक फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन एटसेट्रा, एंड देन कंक्लूजन. ठीक है, इट कुड बी सम कॉज इफेक्ट. ठीक है, सो कुछ मे भी हो सकता है कुछ इकोनॉमिक फेनोमेना या कुछ भी दे सकते हैं. So understand the structure because that will help you answer some of these questions. Like you can get the main idea from the structure of the passage. Right? Let us say if इट्स अ कंपेयर कॉन्ट्रास्ट फीचर. ठीक है, मतलब दो थ्योरीज हैं, साइंस की थ्योरीज हो सकती हैं, फिलोसफी की थ्योरीज हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है. दे माइट हैव कंपेयर्ड दोस टू. तो जो जो मेन आइडिया का क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें आंसर ऑप्शन इस तरह का होगा, टू इवेलुएट, टू टू कंपेयर बिटवीन दीज टू थ्योरीज, टू थ्योरीज ऑफ फिलोसफी, ऐसे करके कुछ ऑप्शन होगा. सो दैट विल हेल्प यू आंसर दीज क्वेश्चंस. Now, what are the doable questions? Generally, I'm not saying that it is for everyone, but for most of the people, the doable questions are basically first one is your main idea. ठीक है, main idea क्या होता है? Main idea usually या तो first paragraph में होगा या फिर लास्ट पैराग्राफ में होगा. तो फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ रीड देम थॉरोली. सो इफ यू सी दैट फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ कुछ सिमिलर लाइंस पे बात कर रहे हैं, सो बेसिकली बिगिनिंग में आपको मिल जाएगा कि ये मेन आइडिया है. ठीक है, अगर फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं मिलता है, सो then probably first paragraph was just an introduction and last paragraph is the conclusion where you will exactly understand it. Also the structure ऑफ द पैसेज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाह रहा है, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दी है और उसका सोल्यूशन बता रहा है. सो दैट शुड यू शुड अलाइन योर आंसर अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, देर आर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर पैराग्राफ से लिए होते हैं. ठीक है, जैसे ऑथर ने कौन कौन से एग्जांपल नहीं दिए हैं या व्हाट ऑल एग्जांपल्स हैव द ऑथर गिवन, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, you need to check the passage. Okay, but these are easy because this is direct, like you can directly pick those. It is just that you need to read those. Structure based, right? Structure based questions are basically what is the use of second paragraph, what is the use of third paragraph. Okay, what does this word in the passage, the why does the author give this example. ठीक है, so again structure में यही सब चीजें ध्यान होंगी, कंपेयर करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने के लिए, एक्सेट्रा. Tone, tone is basically like if you understand the structure, then it requires some vocab as well. Sometimes if you know the meaning of those particular words, then you can do those easily, but otherwise कभी कभी ट्रिकी हो सकता है अगर आपको उन चीजों के मतलब नहीं पता है जो बेसिक वर्ड्स दिए. सो अगेन दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग. इट मे बी इजी फॉर सम and may be tricky for some those who do not are not aware of the exact terms that are being used there. Okay, so ये होता है एक और कैटेगरी. देन ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इन्फरेंस बेस्ड. इन्फरेंस बेस्ड में क्या होता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ. ओके, सो अगर हम बात करेंगे कुछ पैसेजेस ऐसे हो सकते हैं दैट लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ द ऑथर वेरी वेल इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस. अदरवाइज मतलब थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इसमें. इट इज फॉर एवरीबडी. सो यू मे try to avoid such questions. So let us say you get a passage in which you have 3 out of 4 inference based. So I would advise that avoid doing that passage even though it is from your area of comfort. ठीक है, देन इफ यू टॉक अबाउट द वीए पार्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल टीटा क्वेश्चंस. ठीक है, पैराजंबल्स थोड़ा टाइम लगाओ, हो सकता है गुड. ऑड वन आउट सी, ऑड वन आउट में क्या होता है? 5 ऑप्शन होते हैं. ठीक है, मे बी योर लक, मतलब पहले तो कोशिश करो जेन्युइनली अटेम्प्ट करने की, लेकिन अगर जेन्युइनली नहीं हो रहा है, ट्राई डूइंग समथिंग. ठीक है, क्या पता किस्मत हो. ठीक है, अगर मान लो आपके 2 ऑड वन आउट बाय लक चल गए, तो 6 मार्क्स बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? सो यू कैन टेक रिस्क हियर. इन पैरासमरी एंश्योर दैट ऑल मेन पॉइंट्स आर कवर्ड. कभी कभी पैरासमरी में क्या होता है? 2 क्लोज ऑप्शंस होते हैं, एक में एक छोटे सी पार्ट मिसिंग हो सकती है. ठीक है, और मे बी some redundant information or some which is just an example which has been stated. So these are some hacks that help you perform good in the para summary questions. बाकी जहां से आपने पढ़ा होगा, they must have taught you these things, how to do well in these particular questions. ठीक है, so just revise those concepts.
नाउ इफ वी टॉक अबाउट द DILR सेक्शन, ठीक है, द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन, क्योंकि किस तरह के सेट आते हैं यू डू नॉट नो, ठीक है, और लाइक एवरी ईयर इट इज अ सरप्राइज, न्यू काइंड ऑफ वेराइटीज. सो व्हाट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस, जस्ट हैव बिलीफ इन योर सेल्फ, राइट, तो कुछ भी आ सकता है, एंड नथिंग इज certain in this, and बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सरप्राइजेस. मे बी दे माइट चेंज द पैटर्न अ बिट, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि चार की जगह पांच सेट आ जाए, चार चार क्वेश्चंस के. डू नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है. देन वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगेन यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर बटन यूज करके एक क्विक स्कैन मार लेना, ठीक है, नॉट ऑल्दो नॉट ऑलवेज 100% करेक्ट. सी, टू बी ऑनेस्ट, इट इज नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है. ये इट हैपेंस विद मी एज वेल, ठीक है, इवन दो आई माइट हैव सॉल्व्ड हंड्रेड्स ऑफ सेट्स एंड ऑल, बिकॉज एग्जाम में क्या आएगा आपको पता नहीं, आप पूरा स्कैन नहीं कर सकते. सो क्विक स्कैन, अगर बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट, ठीक है. So what you can have is like you can classify something that straight away reject, मतलब ये लास्ट में करना है या नहीं करना है, ठीक है. और अदर्स यू कैन डिफाइन कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है. पॉसिबिलिटी को डिफाइन करो. लेट अस से चार सेट आए, आपने कहा सेट थ्री नहीं करना, पॉसिबिलिटी आपने ली कि 2 1 4. अब इसमें कुछ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बिकॉज यू डू नॉट नो, यू हैव नॉट रेड इट कंप्लीटली, राइट. जब पूरा सॉल्व करने आओगे तो तब पता चलेगा. सो मेक दैट थिंग, देन try to attempt that. Okay, now a general notion is that usually the graph based questions are easy historically, okay, not generalizing it, but still most of the cases I've seen that they are easy. So agar graph based aata hai, try karo, put that as the first possibility, ठीक है. ट्राई करके देखो, अगर अच्छा बन जाता है वेल एंड गुड, नहीं बनता तो उसके लिए बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है. सॉल्व द सेट्स फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन एंड देन चेक क्वेश्चंस. देखो स्कैन करने में तुम्हें 1 से 2 मिनट लगेगा, बट जब सॉल्व करने पे आओगे देन यू रियलाइज कि 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, इफ यू गिव sufficient time like 8 to 10 minutes, then you realize the true strength of that set, ठीक है. ऊपर से स्कैन करने पे लगता है हाँ हो जाएगा, बट हो सकता है 7 8 मिनट्स आपने स्पेंड किए, तब आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो 15 मिनट से ज्यादा जा रहे हैं. सो इन दैट सिनेरियो व्हाट मस्ट बी डन इज, आई मीन, चेक द क्वेश्चंस. हो सकता है कि आउट ऑफ 4 आप एक या दो क्वेश्चन कर लो, ठीक है. उस सेट में फंसने से अच्छा है, क्योंकि देखो सारे सेट डिफिकल्ट नहीं होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ डुएबल आएगा इस पेपर में, ये हमेशा ध्यान रखना. तो दैट मे बी यू एंडेड अप इन द रॉन्ग सेट, ठीक है, आपने स्कैन किया फाइन, बट पूरा डीप तो नहीं गए ना. तो उस सिनेरियो में जस्ट चेक 1 or 2 क्वेश्चंस, अगर हो जाते हैं वेल एंड गुड, जस्ट स्विच टू अदर सेट, क्योंकि अगर आप इसमें पूरा टाइम लगा दोगे तो आपका पूरा टाइम जा सकता है, 15 मिनट्स वेस्ट हो सकते हैं, दैट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन. देन जंप टू द नेक्स्ट सेट, क्योंकि कुछ ना कुछ डुएबल होगा, ठीक है. एंड ऑल दीज टेक्निक्स अप्लाई ओनली इफ यू हैव स्टडीड सिंसियरली. मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करता कि 3 दिन में आपकी इतनी परसेंटाइल आ जाएगी, हफ्ते भर में नहीं. अगर आपने 3 4 महीने कम से कम अच्छे से प्रिपरेशन की, सो दीज थिंग्स विल वर्क फॉर यू. ओके, चेक द क्वेश्चंस, गो टू द अदर सेट, ठीक है. टाइम वापस मिले तब इस पे वापस आ जाओ. अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखना, जिसमें टीटा क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ठीक है, टीटा क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं. टीटा क्वेश्चन मींस रिस्क फ्री क्वेश्चंस, ठीक है. उसके इंस्ट्रक्शंस एटलीस्ट पढ़ लेना. अगर आपसे पूरा सेट नहीं भी बन रहा है तो एटलीस्ट इंस्ट्रक्शन से क्या होगा कि ना आप टीटा में कुछ इंटेलिजेंट गेस कर सकते हो. लेट अस से अगर कुछ दिया है कि लाइक लास्ट ईयर एक सेट आया था ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया था, 3 लोगों का स्कोर 16 है, ठीक है, एक का स्कोर इवन है और एक का ऑड है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज 16, ठीक है. तो उसमें पूछा था ए का स्कोर कितना होगा, ठीक है, और हमें दिया था डी का ऑड है, राइट. तो ए का या तो 16 होता या कोई इवन नंबर लेस देन 16, ठीक है, लेस देन 16. अब जनरल एक साइकोलॉजिकल क्या होता है, 16 तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा दिमाग में रहता है, और दैट वाज द केस. हिज स्कोर वाज 12, सो मे बी समवन पुट 12 14, ठीक है, किसी ने 12 कर दिया होता, तो बाय चांस अगर आपका लक अच्छा है, ठीक है, तो आपका चांस हो सकता है. कभी ऐसा हो सकता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव क्लियर द कट ऑफ, ऐसे करके कुछ है, बहुत लंबा सा कैलकुलेशन है. आपको पता है 6 स्टूडेंट है, आपने कर दिया 3 या 4 ने की हो सकती है, आपने कोई मार्क कर दिया, बाय चांस इट कुड गो इन योर वे, ठीक है. सो ट्रस्ट दैट कि समटाइम्स लक आल्सो वर्क्स, एंड लक आल्सो वर्क्स विदाउट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप रैंडम कर रहे हो, यू आर पुटिंग सम इंटेलिजेंट गेस.
ठीक है। तो इसलिए जिसमें टीटा क्वेश्चन ज्यादा है, ट्राई टू रीड इट एटलीस्ट, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं भी होता कोई बात नहीं, इससे क्या होता है आपके अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि इसमें रिस्क फ्री है, ठीक है। सो हो सकता है यार कि आपके 3 या 6 मार्क्स, 3 मार्क्स भी ज्यादा आ गए ना तो आप बहुत खुश हो गए, यार यार 3 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए मेरे, ठीक है। 25 आ रहे थे, 28 आ गए, सो यू विल बी हैप्पी। देन one thing keep in mind is if the sets that have questions starting with if, right, तो ये समझ जाना चाहिए कि if का मतलब है कि इसमें केस बन रहे होंगे, ठीक है। और केस बन रहे होंगे सो दैट कुड बी अ डिफिकल्ट सेट, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है कि आपको वो सेट अवॉइड करना है, मतलब नॉट दैट अवॉइड बट बेसिकली व्हाट आई से कि जो प्रेफरेंस ऑर्डर में उसे बाद में रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें मल्टीपल केसेस बन रहे हैं सो दैट मीन्स it is going to be a time consuming set. Again, saying that it is not true always, but yes, to great extent I can say that लाइक हो सकता है कि मतलब उसमें आप फंस सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर द DILR सेक्शन। नाउ क्वांट इज समथिंग दैट यू कैन डू वेल ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। इट इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल ऑफ द 3 सेक्शंस, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली वही आएंगे जो आपने पहले किए होंगे, मतलब अगर आपने पास्ट ईयर पेपर्स देखे हैं सो यू मस्ट हैव नोटिस कि अच्छा हाँ ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पहले कहीं देखे हैं। सो दैट इज वाई इट इज एडवाइज्ड कि आप पास्ट ईयर के पेपर्स देख के जाया करो। तो आई होप यू मस्ट हैव सीन दोस, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लाइक व्हाट यू नीड टू रिवाइज इन द नेक्स्ट 2 डेज जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जीरो से हीरो बन जाओगे, बट हीरो से सुपर हीरो डेफिनेटली बन सकते हो, ठीक है। इफ यू आर अ हीरो यू कैन बिकम अ सुपर हीरो ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, बट नॉट डेफिनेटली फ्रॉम जीरो टू हीरो। ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप 60 से 90 परसेंटाइल में जंप कर लोगे, बट हाँ अगर 95 है 95 से 98 में जा सकते हो, 98 है 98 से 99, 99 से 99.5, ठीक है। तो कुछ चीजें जो नेक्स्ट 2 दिन में रिवाइज करनी है, अरिथमेटिक की कॉन्सेप्ट्स, परसेंटेज बेस्ड जो फ्रैक्शन कन्वर्जन होता है, ठीक है, उन सब चीजों को, SICI के फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। जनरल रेट, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स में कितना बन जाएगा, 3 इयर्स में बन जाएगा 33.1% इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, ऐसी चीजें रिवाइज कर लो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, फॉल्स वेस्ट में क्या करना होता है, ठीक है, फॉल्स वेट में कैसे कॉस्ट प्राइस रखते हैं, ऑल दोस थिंग्स। पार्टनरशिप में क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के अलग अलग वेरिएंट्स में क्या क्या लगता है, लाइक कल मैंने एक वर्कशॉप भी ली थी, इफ यू वांट टू वॉच दैट यू कैन वॉच दैट, ठीक है। उसमें मैंने TSD के अलग अलग वेराइटीज कराई हुई हैं, ठीक है, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चंस उसी में कराएं, ठीक है। देयर आर सम अदर वर्कशॉप्स आल्सो, बट मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि सारी बैठ के देखो, ठीक है। बट जस्ट टेलिंग कि ये चीजें पता होनी चाहिए, टाइम एंड वर्क में क्या होता है, पाइप पाइप में नेगेटिव कैसे लेते हैं, वो सब बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। एल्जेब्रा में देखो कुछ चीजें जो जनरली आती हैं, एक लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चंस वेरी फ्रीक्वेंट, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का लॉग बेस्ड आते हैं, तो लॉगरिथम के रूल्स लर्न कर लो कि कहाँ पे कैसा रूल लगता है, ठीक है। लेट अस से इफ आई यू शुड नो कि इफ आई राइट दैट log 9 37 दैट कैन बी रिटर्न एज log 37 by log 9, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है सो दैट हेल्प्स यू इन सॉल्विंग क्वेश्चन, इंस्टेंटली क्लिक होगा कि कैसे करना है। एडिशन में क्या रूल लगता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल लगता है, ठीक है, वो सब चीजें, पावर का रूल क्या होता है, तो ये सब रूल्स हो गए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो वो चीजें पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स रियल कब होती हैं, ठीक है, इक्वल कब होती हैं, राइट, रैशनल इरैशनल कब होती हैं, तो ये सारी कंडीशंस कब कब होती हैं तो ये पता होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है, किस पॉइंट पे मिनिमम आती है, ऑल दोस थिंग्स, मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं फंक्शन का, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूलस में कहाँ पे यूजुअली आंसर होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स रखना, दैट जस्ट रिवाइज दोस थिंग्स। AMGM इनइक्वालिटी, ठीक है, व्हाट डज दिस इनइक्वालिटी स्टेट, कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं, जस्ट सी दोस थ्रू टेस्ट केसेस, ठीक है। लॉन्ग सीरीज, रिमेंबर ये जो लॉन्ग सीरीज का क्वेश्चन आता है ना, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है, वो ऐसा आएगा x1 x2 x3 फाइंड x20 22। तो इसमें क्या होता है, यू नीड टू सी द फर्स्ट फ्यू टर्म्स। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं पास्ट ईयर पेपर्स में, ठीक है,
पास्ट ईयर पेपर्स में बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे। सो एंश्योर कि उसको आप देखो कि हाँ, पहले 4 टर्म्स देख लेते हैं, 5 टर्म्स देख लेते हैं, फाइनल सीरीज पता चल जाती है। सो रिवाइज दिस थिंग। देन इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में बहुत काम आता है रिविजन। I have my own experience as well, right? Sometimes when I appeared for the examination without even studying, and versa is like with going through these things. So what I realized कि अगर बिना पढ़े जाते हैं तो कई बार क्या होता है, ज्योमेट्री के थ्योरम भूल सकते हो, ठीक है। सो रिवाइज दोस थ्योरम्स, ट्राइंगल्स पे क्या होते हैं, सर्कल्स पे क्या होते हैं, कॉर्ड के रूल क्या होता है, टेंजेंट में क्या कंडीशन बनती है, ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और मतलब मीडियन से क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, ऑन दोज थिंग्स। ऑल्सो फॉर्मूले फॉर 2D एंड 3D मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से पक्का क्वेश्चन आते हैं एंड दैट आर फॉर्मूला बेस्ड। आपको दे देंगे रोम्बस के डायगोनल्स निकालो, ठीक है, या फिर आपको दे देंगे कि ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, राइट, दे माइट गिव यू हेक्सागन, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि हेक्सागन का एरिया कैसे आता है, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन ट्रबल, ठीक है। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। देन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। Now, why I said that this is very important is I have seen a lot of questions that could be done very fast if you know Pythagorean triplets. मैं लास्ट ईयर के दो एग्जांपल दे देता हूँ। एक क्या आया था, एक ट्रायंगल था, ठीक है, उसमें आपको दिया था एक साइड 10 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये इन सर्कल है, और इसका इन रेडियस 4 दिया है, ठीक है। आपको इसका एरिया निकालना था ट्रायंगल का। नाउ द थिंग इज, एक तो आप प्रॉपर तरीके से निकालोगे, ठीक है, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, दिस इज आर एंड एक्स वाई जेड ऐसे करके कुछ लगाओगे। दूसरा तरीका, अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको मिल जाएंगे, नेट में सर्च मार लेना, बस देख लेना, ठीक है। तो मुझे पता है 10, 24, 26 से पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है। सो आई वुड जस्ट से कि अच्छा इसकी साइड्स 10 और 24 होंगी, ठीक है, ये 24 हो जाएगी, ये 26 हो जाएगी, और मैंने एरिया निकाल दिया, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद थे, तुरंत हो गया, सही आंसर आ गया। सेकंड, एक और क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था रोम्बस पे, ठीक है, उसमें दिया था कि रोम्बस का पेरीमीटर है 40, ठीक है, तो ईच साइड इज 10। अब उसकी कुछ डायगोनल से कुछ निकालना था, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग या कुछ तो निकालना था। नाउ आई नो दैट 6, 8, 10 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 6, 8, 10, तो मैंने इंस्टेंटली डायगोनल निकाल दी, उसका एरिया भी दिया हुआ था, ठीक है। सो आई फिगर्ड आउट दैट यस दीज आर द डायगोनल्स ऑफ द rhombus, so that saves your time, ठीक है, if you know these numbers, otherwise कैलकुलेट करते हो, वेरिएबल बनाते हो, टाइम लगता है। अच्छा, अब क्वांट में अटेम्प्ट किस तरह से करना पड़ता है, क्वांट में एक तरीका होता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क इज, फर्स्ट सी द क्वेश्चन पेपर बटन, हर सेक्शन में क्वेश्चन पेपर बटन दबाना है जाते हैं, ठीक है। फिर पिक 8 to 10 इजीएस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, 22 क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कुछ तो डेफिनेटली इजी होंगे, ठीक है, सारे डिफिकल्ट तो नहीं होंगे ना, कुछ तो डुएबल्स आएंगे। पिक दोस, मतलब जैसे आपने क्वेश्चन पेपर बटन दबाया, यहाँ पे क्वेश्चन दिख गए आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो आपने देखा कि 1, 2, 3 तो डिफिकल्ट है, ज्यादा टाइम लगेगा, 4 छोटा है आपके एरिया ऑफ कंफर्ट से, फिर आपने देखा 4 सही है, फिर आपने देखा 7 सही है, 9 सही है, 12 सही है, 18 सही है, 20 सही है, आपने 6 क्वेश्चन पिक किए, आपने कहा कि ये 6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली हो जाएंगे। सो अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है, इजी से स्टार्ट करोगे, जल्दी क्वेश्चंस होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यू नीड टू कीप बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, जितना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहोगे ना, उतना पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है, एंड यू कैन परफॉर्म बेटर देन योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो फंस जाओगे, नर्वसनेस आएगी, पेपर अच्छा नहीं जाएगा। सो जस्ट स्टे मोटिवेटेड, कीप योरसेल्फ कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यू कैन डू वेल इन द एग्जाम, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, द रीजन इज कि वाई यू शुड नॉट फोकस ऑन योर स्कोर, ठीक है, कि कितना स्कोर लाना है, कितने इतने क्वेश्चन करने से इतनी परसेंटाइल नहीं, वाई यू शुड नॉट सी इट, ठीक है। सो आई विल talk about this thing. These are my best two performances in the examination 2019 and 2020. So when I appeared in 2019, the paper used to be of 300 marks. Okay, and my score is 212. Right, so 212 is roughly 71%. ठीक है, एंड सी माई परसेंटाइल, इट इज 99.96 परसेंटाइल, ठीक है, दैट वाज माय बेस्ट परफॉर्मेंस एट कैट दस फार, ठीक है, इन विच आई गॉट 99.95 in DILR, 99.92 in QA and 98 percentile in VRC also, ठीक है, all three sections very good score, overall very good score। अब देख रहे हो 71% मार्क्स लाए मैं, ठीक है।
Now let's talk about the next year when I appeared in 2020. ठीक है, 2020 है. Again this year I scored 138, roughly 138 है. ठीक है, 138 आउट ऑफ, इस साल 228 मार्क्स का पेपर था, राइट, 76 क्वेश्चन से. अब 228 में 138 निकाल लो. ठीक है, 225 का 60% होता है 135. ठीक है, रफली 60% मार्क्स है. ठीक है, 60% मार्क्स है. और परसेंटाइल देखो भाई, द परसेंटाइल इज स्टिल 99.94. ठीक है, अब देखो परसेंटेज में बहुत बहुत माइनर सा फर्क है, 99.96 99.94. ठीक है, टॉप मतलब 0.06% में बहुत माइनर सा फर्क है. मे बी एक क्वेश्चन और हो जाता. ठीक है, हो सकता है एक क्वेश्चन और हो जाता, 140 स्कोर आ जाता, 61% मार्क्स आ जाते, 61% पे 99.96 आ जाती. ठीक है, एक एक मार्क्स पे इतना फर्क आ सकता, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, मतलब रफली. ठीक है, तो देखो कि अगर अब हम बात करते हैं 2019 वर्सेस 2020, यहाँ पे 71% मार्क्स लाने पे इतनी परसेंटाइल आई. ठीक है, यहाँ पे 61% मार्क्स पे ही उतनी परसेंटाइल आ सकती थी. सो इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. तो कोई भी आपको ये बताता ना इतने 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 क्वेश्चन करने से इतनी परसेंटाइल आ जाती है, डू नॉट लिसन टू दैट. ठीक है, मैं जब ये पेपर दे रहा था, मैंने ऐसा हिसाब नहीं लगाया कि कितना मुझे करना चाहिए, मुझे इतनी परसेंट. सी आई डू नॉट गो फॉर एनी टारगेट और समथिंग, आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट. ठीक है, सो द थिंग इज गिव योर बेस्ट इन द पेपर. अगर आप बेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार कि हाँ, मतलब हो सकता है कि 60% पे भी उतना ही स्कोर बन जाए जो लास्ट ईयर 70% स्कोर लाने पे बना था. ठीक है, ऑन द फ्लिप साइड अगर पेपर इजी होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि जितने लेट अस से 99% है, लास्ट ईयर 97 मार्क्स पे आई थी. ठीक है, हो सकता है इस बार 105 मार्क्स पे आ जाए. ठीक है, सो डू नॉट टारगेट एनी स्कोर, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट. जहां पे ये दिमाग में आ जाता है ना कि इतने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो वो आपको एक कॉम्प्लेसेंसी का फील दे देती है. उससे क्या होता है कि मान लो पेपर इजी हो गया, तो आप तो सोच रहे हो अरे किसी ने बोला था 11 11 11 कर लोगे तो 99 आ जाएगी, आपने 11 11 ही किए. ठीक है, बट पेपर था इजी, आपको 14 14 14 करने थे, तब जाके 99 आती. बहुत आसान पेपर आ गया. ठीक है, पर आप माइंड सेट ये बना के रहो कि 11 11 11 करना है. सो डू नॉट गो विद एनी सच माइंड सेट. ऑन द फ्लिप साइड मान लो डिफिकल्ट पेपर आ गया, 9 9 9 पे ही 99 परसेंटाइल आ गई, सो इट कैन गो ईदर वे. सो डू नॉट गो विद एनी स्कोर इन योर माइंड. ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं और बहुत लोग करते हैं. सो सी दिस थिंग यार, 10% मतलब 61% पे उतनी परसेंटाइल आ गई और दूसरे साल में 71% पाई थी. आई डिड नॉट गो विद दिस कि मुझे 71% ही लाना है, आई जस्ट ट्राई टू डिलीवर माई बेस्ट. ठीक है, और आप देख सकते हो ठीक है स्कोर्स भी सिमिलर है, 99.87 99.99. ठीक है, इस बार भी ये बेकार चला गया था, 88 परसेंटाइल ही आया था. ठीक है, सो फ्लक्चुएशंस थोड़ा बहुत आ सकते हैं, कुछ हो सकता है, बट स्कोर ट्राई टू मैक्सिमाइज. ठीक है, तो जस्ट गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, डू नॉट वरी अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स. अभी बस एक फोकस है. ठीक है, लास्ट के 2 दिन में चीजें रिवाइज कर लेनी है, ब्रश अप करनी है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना. ठीक है, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गए, अलजेब्रा की क्या क्या चीजें होती है, आइडेंटिटीज, लॉगरिथम के रूल्स, उनसे क्वेश्चंस यूजुअली आ जाता है. ठीक है, तो ये चीजें रिवाइज कर लेनी एग्जाम के दिन में. जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, क्योंकि अगर आप ये स्कोर दिमाग में लेके चलोगे ना मुझे इतना स्कोर लाना है, और हाँ, नेवर एवर रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. ठीक है, कोई कैप मत लाके चलो कि मुझे 95 परसेंटाइल ही लानी है. ठीक है, अगर आप ये सोच के चलोगे 95 परसेंटाइल लानी है, आप उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हो, तो क्या होता है कि आपकी एक मेंटल बैरियर लग जाता है कि अरे हाँ मुझे 95 परसेंटाइल टारगेट करनी है, 99 परसेंटाइल टारगेट करनी है, 90 करनी है. तो एक मेंटल बैरियर मत रखो, ट्राई टू गिव योर बेस्ट. हो सकता है आप 95 टारगेट करो 98 आ जाए. ठीक है, और डिपेंडिंग आप सोचते थे ठीक है मुझे कोई पुराना नया आयाम भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, बट आपको पुराना आयाम मिल जाए. ठीक है, सो डू नॉट गो विद एनी सच माइंडसेट, ब्लॉक नहीं होना चाहिए मेंटल बैरियर. ठीक है, जस्ट हैव द फोकस, आपको बेस्ट परफॉर्म करना है. और कुछ मैंने हैक्स बता दिए कि क्या क्या चीजें देखनी है वीआरसी में, क्या क्या चीजें नोटिस करनी है. ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है, टीटा क्वेश्चंस आर अ मस्ट टू अटेम्प्ट. ठीक है, डीआईएलआर में किस तरह से हेड सेट्स देखने हैं, फंसना नहीं है, फंस जैसी लगेगी फंस रहे हो जस्ट स्किप द सेट. सेम गोज विद क्वांट आल्सो. इफ यू फील दैट यू आर हेडिंग नोवेयर, आपने 2 मिनट स्पेंड कर दिए किसी क्वेश्चन में, आपको लग रहा है ये नहीं हिल रहा है, तो जस्ट मूव टू अदर सेट. हो सकता है कि कभी जजमेंट में गलती हो सकती है ना, आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लगा कि क्वेश्चन आसान है पर नहीं है, तो जस्ट स्किप दोज क्वेश्चंस. कहीं पे भी फंसना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह से
प्रिपेयर करोगे, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है स्टक हो रहे हो, मूव अहेड, राइट, मे बी यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, और इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपने इस तरह से परफॉर्म अच्छे कर लिए तो आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ जाता है। दिस इज द वे यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर, and this applies only if you have worked hard towards it, right? So now it is not about aptitude, it is about attitude. I hope you have that positive mindset. So I wish you all the best for CAT 2022. I will see you on the day of the examination for the analysis, and tomorrow I will be coming up with a video on last minute tips, मतलब जो last day आपको exam के दिन क्या क्या चीजें करनी है। All right, so thank you for watching this video. Have a great day ahead. Goodbye.